Good evening and Vande Mataram to all. Let's start with exercise number 4, question number 16. What is the question? 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7 up to 1 upon 3n minus 2 into 3n plus 1 is equal to, you have to prove that n upon 3n plus 1. So guys, this is my Pn. Let's start. For n equal to 1, P1. What is P1? चलिए LHS पे पुट करिए. This is your LHS and this is your RHS. Okay. LHS पे पुट करिए n equal to 1. Yes बेटा. क्या हो जाएगा? 3 minus 2. सर हमारा वॉइस में ऐसे कोई डिस्टर्बिंग साउंड आ रहा है. आपका LHS में n equal to 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Is it clear now? यहाँ पे put n equal to 1 क्या हो जाएगा? 3 minus 2 that is 1 and 3 plus 1 that is 4. So 1 into 4 first term is your LHS. Okay. Now RHS. What is RHS? RHS में क्या होगा? Put n equal to 1 तो यहाँ पे 1 3 plus 1 that is also 4. So your LHS and RHS both are same. Therefore LHS is equal to RHS. This implies P of 1 is true. P of 1 is true. Now second, for n equal to k, let P of k is true. P of k is true. Therefore P of k लिख लेते हैं 1 upon 1 into 4 plus 1 upon 4 into 7. 2 steps ही लिखो, that is more than enough. 3k minus 2. Whenever it is n, you have to put k. 3k plus 1. Same procedure in all up to P of k plus 1. For n equal to k plus 1, let LHS of what? P of k plus 1. What is the LHS? Can be 1 into 4 plus 1 into 4, 1 upon 4 into 7. Up to यहाँ तक तो we have to go 3k minus 2 upon into 3k plus 1. Now one more step is added. What is that? In place of k or in place of n, you have to put k plus 1. चलिए k plus 1 पुट करते हैं नेक्स्ट स्टेप में. तो क्या होगा? देखो हो जाएगा आपका 3k plus 1 minus 2 और यहाँ पे होगा 3k plus 1 plus 1. यहाँ पे जहाँ पे k था I have to put k plus 1. That's it. तो ये क्या हो जाएगा? 3k plus 3 minus 2 that is 3k plus 1. सिंपल. और ये हो जाएगा आपका 3k plus 3 plus 1. So that is 3k plus 4. Okay. So basically I have the last term plus 1 upon 3k plus 1 into 3k plus 4. Okay. अब यही प्रोसेस आप रफ में भी साइड में कर सकते हैं या फिर you can do with pencil also. So this is my last term, k plus 1 term. यहाँ तक के टर्म के लिए मेरे पास है I have equation number 1. So put the value of equation number 1 here. K upon 3k plus 1 plus 1 upon 3k plus 1 into 3k plus 4. This is by 1. Okay. What is the common? 1 upon 3k plus 1 is common. K 1 upon 3k plus 4. चलिए टेक LCM. क्या होगा? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4. अब आप आंसर देखोगे ना तो आंसर में आपको क्लियर है. आई नीड n मीन्स k प्लस 1. तो यहाँ पे एक फैक्टर आपका k प्लस 1 आएगा. दूसरा आई वॉन्ट k plus 1 here, so 3k plus 3 plus 1, so मतलब 3k plus 4. तो ऊपर दो फैक्टर तो मेरे कॉमन हो गए.
k+1 3k+1, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। मैम ऐसे थोड़ी चलता है, सो वी कैन चेक इट। चलिए चेक कर लेते हैं। 3k² + 4k+1, सो व्हाट आर द फैक्टर्स? 3k² + 3k + k+1, देखो 3k इज कॉमन, k+1 + 1 कॉमन, k+1, देखो आ गए दोनों फैक्टर्स, राइट? k+1 is common from both, so your answer is k+1 3k+1. These are two factors. ये देखो ये दोनों कट हो जाएंगे, so basically my answer is k+1 upon 3 into k+1 plus 1. This is my RHS, and this implies P of k+1 is true. This implies for all n belongs to n, Pn is true. अब तक के सारे क्वेश्चंस में LCM लेने के अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया. We have done nothing except we take LCM and then factorize and your answer Yes, is sir. yes बेटा. इससे वहाँ पे 3k+4 है ना, तो उसका 3k+1 प्लस 1 कैसे हुआ? सोचो, 3 into k, 3k plus 3 plus 1. समझ में आया? ओके टीचर. सिर्फ मैंने ब्रैकेट ओपन किया बेटा. यस, ओके. चलिए, एनी डाउट्स? So this No, is ma'am. your question. Guys, now we are going to do sums related to inequality. बहुत इजी है. जो भी हमने सिंप्लीफिकेशन अब तक दिया है ना, उससे इजी कॉन्सेप्ट है. ओके, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इक्वल टू गिवन नहीं है, इनइक्वालिटी है. तो इनइक्वालिटी है मतलब मुझे थोड़ा सा LHS थोड़ा सा RHS दोनों में थोड़ा थोड़ा सोचना है. दोनों में आई हैव टू थिंक अबाउट बोथ. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18. फर्स्ट, दिस इज माय LHS एंड दिस इज माय RHS. अब हमें प्रूव करना है कि LHS इज लेस देन RHS. दिस इज माय PN. तो फर्स्ट स्टेप एज इट इज फॉर ऑल for n equal to 1 P1. What is LHS? What is LHS? n equal to 1 पुट करो 1. RHS में क्या हो रहा है गाइस? देखो 1/8. यहाँ पे होगा 2 + 1 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, दैट इज 9/8. ऑब्वियसली 1 is less than 9/8. This implies P1 is true. अब यहाँ पे do not write LHS equal to RHS. ओके, यहाँ पे इक्वल नहीं है, सो डोंट डू दैट मिस्टेक. P1 इज ट्रू. सेकेंड स्टेप, फॉर n इक्वल टू k. अब ये जो है ना बहुत हेल्प करने वाला है. लेट P ऑफ k इज ट्रू. अब तक तो हेल्प की ही है डेफिनेटली, लेकिन अब जो इनइक्वालिटी है ना, इनइक्वालिटी दैट विल हेल्प. कहाँ से आएगी? फ्रॉम pk. ओके, तो P ऑफ k इज 1 + 2 + 3 अप टू k लेस देन 1/8 2k + 1 होल स्क्वायर. देखिए अब तक जो भी है एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ. हाँ, सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू के बदले हमने लेस देन ग्रेटर देन के फॉर्मेट में किया है. नाउ स्टेप 3, फॉर n इक्वल टू k + 1. देखो LHS व्हाट इज दैट? P ऑफ k + 1. तो अब मुझे क्या करना है? आई हैव टू गो अप टू k + 1 स्टेप. देखिए यहाँ पे अप टू दिस वो तो हमने नॉर्मली किया. यहाँ पे मैंने क्या किया? पुट n प्लेस ऑफ n आई हैव टू पुट k + 1. चलिए यहाँ तक आई एम गोइंग टू यूज इक्वेशन 1. व्हाट इज दैट? 1/8. देखिए इक्वल टू नहीं, दिस इज लेस देन 2k + 1 होल स्क्वायर प्लस k + 1. देखिए ये जो 1/8 है सिर्फ इसका मल्टीपल है. अब दो कॉन्सेप्ट दिखाती हूँ मैं आपको. सपोज मैं लिख रही हूँ 2 is less than 3. दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू. यस, 2 is less than 3. अब क्या कर रही हूँ? इन प्लेस ऑफ 3
इन प्लेस ऑफ 3 आई एम गोइंग टू राइट 2 + 1 या फिर 1 + 1 + 1। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या होगा? इक्वालिटी। देखना एकदम ध्यान से, 2 इज लेस देन 3, दिस इज ट्रू। अगर मैं 2 को यहाँ से कंपेयर करूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 2 इज लेस देन 1 + 1 + 1। लेकिन इन दोनों को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ, 3 के बदले मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 + 1 + 1। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अगर LHS को कंपेयर करना है फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप तो मुझे लिखना पड़ेगा लेस देन। लेकिन यहाँ पे मैं कर क्या रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में? इक्वल टू 1/8। आई एम गोइंग टू टेक LCM 1/8। इसको मैंने ओपन भी कर दिया, 4k² + 4k + 1 एंड आई एम गोइंग टू टेक LHS एज LCM एज 8। देखिए, तो ये दोनों स्टेप इक्वल है, लाइक 3 = 1 + 1 + 1, या फिर आप लिख लो 3 = 2 + 1। ठीक है, सो दिस 2 आर इक्वल, दिस इज लेस देन 2 + 1, दिस 2 आर इक्वल। अगर इस स्टेप को मैं कंपेयर करूं, pk + 1 को कंपेयर करूं, तो आई हैव टू राइट लेस देन। समझ में आया? कोई डाउट? क्लियर है ना? नो ये मैम, दोनों आपने step- को इक्वल तो किया, वो समझ नहीं आया। These 2 steps are equal। यहाँ पे मैंने क्या किया? These 2 steps are equal like this। अगर मुझे 3 लिखना है तो मैं 2 + 1 = लिखूंगी, ठीक है। अगर मुझे 2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? लेस देन 2 + 1। तो मतलब ये दोनों स्टेप को अगर कंपेयर करना है सो आई हैव टू राइट लेस देन। अगर ये दोनों स्टेप को अगर कंपेयर करना है सो आई हैव टू राइट लेस देन। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया? सिर्फ इसी टर्म में मैंने चेंज किया। क्या किया? मैंने LCM लिया, है ना। तो 3 के बदले मैंने 2 + 1 लिखा। तो ये दोनों स्टेप इक्वल है, दिस इज लेस देन दिस स्टेप। अब समझ में आया? जहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ वहाँ पे मुझे लेस देन और ग्रेटर देन लिखना है, लेकिन उसी स्टेप का मैं यहाँ पे मैंने क्या किया? सिर्फ एक्सपांशन किया और LCM लिया, और मैंने कुछ नहीं किया, है ना। तो ये तो क्या हो गया? वही स्टेप फिर से हो गया। सो आई हैव टू राइट इक्वल टू। ठीक है। अगर मैं हाइट की बात करूँ, चलिए एक और एग्जांपल दे देती हूँ। हाइट की बात करूँ, 2 सेम हाइट वाले मैंने लड़के खड़े रखे हैं। सो आई एम गोइंग टू से दैट बोथ हाइट इज सेम। तो मैं क्या करूँगी? इक्वल लिखूँगी, ठीक है। लेकिन एक की जो हाइट है, एक बच्चे की, उसका जो हाइट का रेशियो है, सपोज 5.6 हाइट है उसकी। अब 2 बच्चे मैं ऐसे बना रही हूँ जिनकी हाइट का एडिशन 5.6 है। तो सिंगल कंपेयर करूँगी तो क्या होगा? एक छोटू है, उसकी हाइट कंपेयर करूँगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लेस देन। दोनों मिला के इक्वल होते हैं, बोथ एडिशन ऑफ बोथ इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर एक ही लूँ दोनों में से तो क्या होगा? लेस देन। समझ में आया? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये दोनों स्टेप इक्वल Yes, है, ma'am. ये दोनों स्टेप इक्वल है। सो दैट्स व्हाई आई राइट इक्वल टू दिस। अगर इसको और इसको कंपेयर करना है तो बीच में लेस देन है। मतलब आपको एक चीज़ सोचनी है कि कहीं पे भी अगर मैं लेस देन लिख रही हूँ तो फर्स्ट स्टेप से कंपेयर करूँगी तो लेस देन आएगा। If I am comparing with first step, then it is less than. So अब इसका मैं सिंप्लीफिकेशन फिर से दे रही हूँ। What is the answer? 4k² + 12k + 9। अब मुझे लाना क्या है? What is my RHS? RHS में अगर मैं 1/8 तो है मेरे पास। देखो मैं क्या पुट कर रही हूँ? 2k + 1 + 1 whole square. So what is this? What is this? 2k + 2 + 1, that is 2k + 3 whole square. तो ये गाइस क्या होगा? देखो 2k² मतलब 4k², यहाँ पे हो जाएगा 12k + 9। तो वो स्टेप तो है मेरा। यस, डायरेक्टली मिल गया। अगर डायरेक्टली मिल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज माई कंप्लीट स्क्वायर 1/8 2k + 3 whole square।
ओके, सो दिस इज माय आंसर। अगर मैं pk प्लस 1 लिखूंगी तो बीच में सिंगल टाइम वी हैव लेस देन, सो देयरफॉर दिस इज योर RHS, सो आई हैव टू राइट LHS is less than RHS. I have to write LHS is less than RHS. This implies P of k plus 1 is true. Therefore, for all n belongs to n, P is true. देखिए, फिर से वीडियो देखना है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो बार बार ये वीडियो देखना है। You have to check it. Okay guys, this is inequalities. तो inequality में मेन प्रॉब्लम क्यों हो रही है हमें? बिकॉज दिस टू टर्म्स आर नॉट इक्वल। तो हमें डायरेक्ट जो आंसर मिलता था LHS इक्वल टू RHS वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है वी डोंट नो, है ना। तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी। फॉर n इक्वल टू 1, दिस इज अवर स्टेप 1। फॉर n इक्वल टू 1, P1, देखिए दिस इज योर LHS, दिस इज योर RHS। तो LHS इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस 7 दैट इज 9। RHS में क्या है, देखो डिफरेंस देखो आप लोग, 1 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 16। तो पहले ही स्टेप में आपका डिफरेंस 7 का है। जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेंगे वैसे डिफरेंट इंक्रीज होगा। सो डायरेक्टली हमें RHS मिल ही जाए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। P1 is true. Number 2, for n equal to k, let P of k is true. For n equal to k, P of k is true. अब देखिए गाइस, P of k तो मैंने ले लिया। P of k क्या है मेरा, P of k is put n equal to k, 2k plus 7 less than k plus 3 whole square. This is my equation number 1. गाइस जहाँ जहाँ पे मैं भूल रही हूँ आप लोग लिख रहे हो ना, बाई k प्लस बाई इक्वेशन 1 आपको खुद पुट करना है। देखो ये सम बहुत इजी है, बहुत स्मॉल है, इतने लेंथ इतनी बड़ी नहीं है। देखिए दिस इज माय स्टेप k प्लस 1, n के बदले k प्लस 1 मैंने पुट कर दिया। सो व्हाट इज माय वैल्यू, 2k प्लस 2 प्लस 7। अब वैल्यू किसकी है मेरे पास, इक्वेशन 1 में वैल्यू मेरे पास है 2k प्लस 7 की, तो इस 2 को लास्ट में ले लो, 2k प्लस 7 प्लस 2। इसके लिए आई एम पुटिंग द वैल्यू, व्हाट इज दैट, k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2, दिस इज बाई 1। अब देखो, अब मैं कर रही हूँ स्क्वायर, सिर्फ मैं इसका एक्सपांशन कर रही हूँ और मैंने कुछ ऐड नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इक्वल टू। क्या होगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2, दिस इज माई नेक्स्ट स्टेप, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब मुझे आंसर क्या चाहिए, व्हाट द आंसर आई वॉन्ट k प्लस 4। हाँ थोड़ा देखो रफ वर्क में कर रही हूँ। RHS में मुझे क्या चाहिए, इन प्लेस ऑफ n पुट k प्लस 1, तो k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, मतलब आई वॉन्ट k प्लस 4 होल स्क्वायर। अब k प्लस 4 होल स्क्वायर मतलब क्या है, k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। अब देखो मेरी वैल्यू क्या आई, 6k प्लस 11। देखिए मैंने आपको पहले ही स्टेप में बहुत क्लियरली बताया कि यहाँ पे n 9 है 1 के लिए, यहाँ पे 9 है LHS और RHS 16 है। अगर आप 2 पुट करोगे ना तो डिफरेंस और इंक्रीज होगा, अगर आप 2 पुट करोगे तो डिफरेंस विल बी इंक्रीज मोर देन दिस। यहाँ पे 7 का डिफरेंस है, वहाँ पे शायद 25 का भी हो, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे स्टेप इंक्रीज हो रहे हैं मेरा डिफरेंस बढ़ रहा है। सो टू गेट RHS मैं क्या कर रही हूँ, कुछ टर्म ऐड कर रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे एकदम क्लियर कर लो कि ये जो k है ना दैट इज बिलोंग्स टू n, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है। बिलोंग्स टू n मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर किसी भी टर्म में मैं k ऐड करूँगी, k या फिर k का कोई भी मल्टीपल या फिर
ए के प्लस बी मतलब ए का मल्टीपल प्लस कोई कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे 8k प्लस 16 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास 6k प्लस 11 है, आई एम एडिंग समथिंग। अब तक मैंने इक्वल टू लिखा था, अब इस टर्म में मैं कुछ और ऐड कर रही हूँ। क्या ऐड कर रही हूँ, 2k प्लस 16 लाना है, यहाँ पे 11 है तो 5। अब ऐसे तो मैं ऐड नहीं कर सकती, अगर मुझे इक्वल टू लिखना है तो मैं ऐड करूँगी तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट मैं कर नहीं सकती। क्यों, क्योंकि मुझे ये स्टेप लाना है। तो मैंने कुछ ऐड किया, यहाँ पे 2 था, ऑलरेडी लेस देन 3 था, 2 इज ऑलरेडी लेस देन 3 था। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया, चलिए इक्वल टू 2 प्लस 1 तो लिखा ही था, अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 प्लस 1 लिखा प्लस उसमें 5 ऐड किया, तो अब मैं क्या करूँगी, फिर से लेस देन पुट करूँगी। क्यों, क्योंकि मैंने 5 ऐड किया। यस बेटा, जैसे आप लिख रहे हो ना उस साइड का नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत ब्राइटनेस है। ओके ओके, यहाँ पे क्लियर है ना? ओके चलिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 इज लेस देन 3 था, मैंने 3 के बदले 2 प्लस 1 लिखा, तो यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं उसमें और कुछ ऐड कर रही हूँ, +5। अगर मैं उसमें +5 ऐड कर रही हूँ तो क्या होगा, अब इन दोनों को कंपेयर करो तो मैंने उसमें ऐड किया +5, तो ये फिर से लेस देन हो जाएगा। वैसे ही मेरे पास ये टर्म नहीं है, लेकिन RHS के लिए आई वांट, तो जब भी आप कुछ ऐड कर रहे हो सो दैट टर्म विल बी ग्रेटर ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ तो दैट टर्म विल बी ग्रेटर, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो आपका LHS ग्रेटर होगा। जहाँ पे ऐड कर रही हूँ दैट टर्म विल बी ग्रेटर। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया ये 2k प्लस 5, एंड सिंस वी हैव k बिलोंग्स टू n, तो k की वैल्यू आप सिर्फ 1 पुट करोगे ना, तो मैंने 7 ऐड किया। k की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, मैंने 9 ऐड किया RHS में, तो मतलब ये टर्म आपकी डेफिनेटली इस टर्म से ग्रेटर होगी। यहाँ से तो ग्रेटर है ही, इस टर्म से भी ग्रेटर होगी। ओके, मतलब जब भी आप कुछ ऐड कर रहे हो तो आपको ग्रेटर देन लिखना है। समझ में आया? सिंपल कॉन्सेप्ट। मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, मैं 3 ऐड कर रही हूँ, तो 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज लेस देन 3। या फिर मेरे पास 2 चॉकलेट्स हैं, मैं 3 ऐड कर रही हूँ, तो 2 प्लस 3 मेरे 5 हो गई, तो पहले 2 थी, नाउ आई हैव 5 चॉकलेट्स, तो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। वाई, बिकॉज आई ऐड 3 चॉकलेट्स। ओके, मैंने ऐड किया तो आपका टर्म ग्रेटर हो गया। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, क्या है, k² प्लस 8k प्लस 16, दिस इज योर k प्लस 4 होल स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर, डन। एंड therefore LHS is less than RHS. This implies P of k plus 1 is true. Guys, जब भी लेस देन ग्रेटर देन के सम है, आपको कुछ ना कुछ, हाँ 18 सम में हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड आइदर और सब्ट्रैक्ट। अगर ऐड किया तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा और LHS आपका लेस देन जाएगा। अगर आपने कुछ सब्ट्रैक्ट किया तो आपका LHS ग्रेटर होगा, RHS लेसर होगा। वो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, व्हाट इज़ द सिचुएशन गिवन टू यू, उस पे से ही आपको समझ में आएगा। यू हैव टू ऐड लास्ट स्टेप, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, Pn इज ट्रू। चलिए, अब कोई डाउट? मैम दोनों साइड ऐड कर सकते हैं? दोनों साइड ऐड करोगे बेटा तो इक्वल टू हो जाएगा। और दोनों साइड ऐड कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 2k प्लस 5 नहीं चाहिए ही नहीं हमें, तो सेकेंड साइड तो आपको ऐड करना ही नहीं है, नहीं तो ये पूरा फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, Pn ही चेंज हो जाएगा। सो यू कैन नॉट ऐड बोथ द साइड।
बोलो, एनी डाउट्स नाउ? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, प्रूव दैट 2 रेज टू n इज ग्रेटर देन n. अब ये हमें समझ में आता है गाइस. देखो n की पावर 1 पुट करोगे, कोई भी पावर पुट कर लो, 2 रेज टू 6 पुट करोगे, सो इट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 6, राइट? सो स्टेप नंबर 1, फॉर n इक्वल टू 1 p1. देखिए ये मेरी LHS है, बहुत छोटी है, RHS भी बहुत छोटी है. सो व्हाट इज LHS? 2 रेज टू 1, दैट इज 2. What is RHS? 1. So 2 is obviously greater than 1. So that's why P1 is true. Number 2. For n equal to k, let P of k is true. P of k is true. तो P of k क्या लिखेंगे? 2 raised to k greater than 2. 2 raised to k is greater than 2. Right? Sorry, 2 raised to k is greater than k. In place of n, I have to put k. Okay. Number 3. क्या है? For n equal to k plus 1. Now this is my very important step. Let's start LHS. देखो हाँ, अभी खत्म होते ही शुरू होते ही खत्म हो जाएगा. पुट k प्लस 1, सो दैट इज 2 रेज टू k प्लस 1. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 रेज टू k इंटू 2. जब भी हमें 1 की वैल्यू पुट करनी है तो नाउ यू हैव टू एडजस्ट स्टेप 1, इक्वेशन 1. आपने जो p ऑफ k लिखा है अब आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, यू हैव टू एडजस्ट. देखो आगे वाले स्टेप में भी एडजस्ट किया था, यहाँ पे भी आई एम एडजस्टिंग. तो अब क्या है इक्वेशन? दिस इज ग्रेटर देन k इंटू 2 एज इट इज, दिस इज बाई 1. बस अब हो ही गया है. अब 2 इंटू k है तो मैं 2k लिखूँ या फिर k प्लस k लिखूँ, चलेगा? डेफिनेटली चलेगा. अब k क्या है? k बिलोंग्स टू n है, तो ये वाला जो k है ना, ये वाला जो k है आई एम राइटिंग एज इट इज. k सपोज 7 है तो यहाँ पे मैंने 7 एज इट इज लिखा. इस k के बदले आई एम पुटिंग प्लस 1. क्यों भाई ऐसा? RHS वांट्स दैट. क्या किया मैंने? यहाँ पे 7 था, 7 कट करके मैंने 1 कर दिया. सो क्या किया मैंने? 7 चॉकलेट थी, बाकी सब निकाल दी, ओनली 1 लेफ्ट, तो मैंने कट किया मतलब LHS इज ग्रेटर देन. देखिए मैं क्या बोल रही थी, अगर RHS में आप ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू राइट लेस देन. उल्टा है, RHS में आप ऐड कर रहे हो तो यू हैव टू राइट लेस देन, बिकॉज LHS छोटा होगा, RHS बड़ा होगा. एंड इफ यू आर कटिंग समथिंग, लेस कर रहे हो तो यू हैव टू राइट ग्रेटर देन. इन दैट केस LHS इज बिगर. LHS के पास 7 चॉकलेट्स हैं, RHS के पास सिर्फ 1 चॉकलेट है या फिर 6 चॉकलेट है. ठीक है, तो RHS स्मॉलर हो गई. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट. देखिए क्या किया, ये के एज इट इज रखा. इन दिस के आई हैव टू पुट 1, देन ओनली माई RHS विल बी देयर. सो ये मेरी क्या हो गई? LHS इज ग्रेटर देन RHS. LHS is greater than RHS. Okay, so this implies P of k plus 1 is true. Therefore, for all n belongs to n, Pn is true. Guys, main step देखने जाओ ना तो बस ये लास्ट वाला ही है, that's it. बाकी सब तो हमने simplification लिखा है. This is more important. Okay, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना, अगर कुछ भी समझ में ना आए और प्रूव करना है तो क्या करना, लास्ट स्टेप में RHS लिख देना, जो भी साइन चाहिए वो साइन के साथ. दैट्स इट. ओके, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि मैंने कट किया कि ऐड किया, नहीं समझ में आ रहा है, सोचो k की वैल्यू सपोज मैंने 6 या 7 पुट करी है, तो यहाँ पे 7 + 7 दैट इज 14 है मेरे पास. और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? देखिए k इक्वल टू, अगर मैं 7 पुट करूँगी, k इक्वल टू 7 यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास है 14.
मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए k प्लस 1 दैट इज 7 प्लस 1 8 चाहिए, तो 8 इज लेस देन 14, 8 क्या होगा 14 से लेस होगा। बस ये सोच लो, जब भी समझ में ना आए ना वैल्यू पुट कर दो। इनइक्वालिटी का ये मेन इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल है, जब भी समझ में ना आए वैल्यू पुट कर दो। इनइक्वालिटी क्यों, बहुत सारी जगह पे ये हेल्प करेगा कि जब भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि क्या होगा, लेस देन लिखना है, ग्रेटर देन लिखना है, इक्वल टू लिखना है, तो बस वैल्यू पुट कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर विद इन अ मिनट। ओके, चलिए अब कॉन्सेप्ट क्लियर। Example number 5, 1 plus x whole raised to n is greater than 1 plus nx. So this is your LHS, this is your RHS. Condition guys, x greater than -1 x के लिए है, n के लिए नहीं है। n के लिए आपको क्या बोला है, ओके फॉर ऑल नेचुरल नंबर, मतलब n is belongs to n। अगर आपको n ऐसा कुछ गिवन है ग्रेटर देन 2 तो आपको स्टार्ट करना है स्टेप 1 फ्रॉम 2 ओनली। मैंने आपको पहले भी बताया था, इफ दे आर गिवन टू यू दैट n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 देन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2। आपको तब स्टेप 1 में p1 प्रूव नहीं करना है, इन दैट केस योर p1 इज नॉट ट्रू। ओके, यहाँ पे आपको बोला है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तो लेट्स स्टार्ट। फॉर n इक्वल टू 1, p1 क्या होगा, LHS देखिए 1 प्लस x रेज टू 1 दैट इज योर p1, LHS ऑफ p1। n के बदले मैंने 1 पुट किया। ओके, RHS देखो 1 प्लस 1 इंटू एक्स, तो मतलब 1 प्लस एक्स बोथ आर इक्वल, तो इक्वल भी चलेगा, यहाँ पे इक्वल टू भी गिवन है। LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर p1 इज ट्रू। ओके, जब भी आपका 1 स्टेप के लिए इक्वल टू ट्रू होगा ना, तभी आपको यहाँ पे इक्वल टू गिवन होगा। देखिए 2 से तो आपका ग्रेटर देन ही जाएगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 प्लस 2x, है ना। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप में इक्वल टू आएगा, बाकी सारे स्टेप में तो आपका ग्रेटर देन ही जाएगा। दैट्स व्हाई दे गिव यू इक्वल टू ओनली फॉर p। अगर यहाँ से इक्वल टू मैंने रिमूव कर दिया, सो आई हैव टू राइट n इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। देखिए क्वेश्चन में ऐसे थोड़े से माइनर चेंज करें और हमारा पूरा जो प्रूफ है वो चेंज हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपको n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करना है, दैट्स इट। ओके, अगर रिमूव कर दिया आपका इक्वल टू then ओनली। चलिए नंबर 2, फॉर p of k n equal to k, p of k is true, so therefore p of k, what I can write 1 plus x raised to k, k put करो only at place of n। हाँ, n के बदले ही मुझे k प्रूव करना है, k लिखना है। अब this is my equation 1। स्टेप 3, चलिए बाय डेल्टन n, एंट्री ऑफ k प्लस 1, LHS p of k प्लस 1 इज नाउ हियर प्रेजेंटिंग k प्लस 1। क्या करना है, इन प्लेस ऑफ n पुट k प्लस 1। देखिए यहाँ पे k पावर के लिए है, तो जैसे 2 रेज टू k में हमने पावर सेपरेट कर दी थी, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। 1 प्लस एक्स रेज टू k into 1 plus x। Okay, for this I have equation 1 that is greater than or equal to 1 plus ax into 1 plus x। चलिए अब this step is equal to, क्यों कर रही हूँ मैं, simplify only, so that's why 1 plus x plus kx plus kx square। अब मुझे चाहिए क्या, देखो what is RHS, what is RHS, 1 प्लस n के बदले k प्लस 1 पुट करो x, सो दिस मीन्स आई वॉन्ट 1 प्लस kx प्लस x। देखिए ये 3 स्टेप ही चाहिए, दिस इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है, आई एम डिलीटिंग। सब्ट्रैक्ट किया मतलब, सब्ट्रैक्ट किया मतलब अगर आपका x 0 हुआ
देखिए एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो अगर आपका 0 हुआ तो ये स्टेप अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज यू हैव टू राइट ग्रेटर देन। समझ में आया? क्या किया टीचर ने? टीचर ने ये टर्म डिलीट कर दी, kx² इज रिमूव्ड। निकाला मतलब ग्रेटर देन, रिमूव्ड मतलब ग्रेटर देन। और अगर सपोज x 0 है तो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट। अगर x 0 है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा और यहीं पे भी 1 ही मिलेगा, तो इन दैट केस यू हैव इक्वल टू, देखिए लाइक दिस, A1 इज ट्रू। अदरवाइज आपका ये सर के एक्स स्क्वायर वाला नहीं समझ। बेटा अब तक मैं क्या कर रही थी, जब लेस देन था तो मैं कुछ ऐड कर रही थी, लाइक मैंने ऐड किया था 2x + 5, है ना, ऐड किया था तो ये टर्म बिगर हो गई। इफ आई एम एडिंग समथिंग तो जहाँ पे ऐड कर रहे हो वो टर्म बिगर हो गई। मैंने चॉकलेट वाला बोला ना आपको कि मेरे पास सपोज 7 चॉकलेट्स है, अब मैं सबको दे रही हूँ, सो नाउ आई हैव ओनली 2 चॉकलेट्स, ठीक है। तो यहाँ से मैंने निकाल दी चॉकलेट्स, कितनी, kx²। मेरे पास इतनी चॉकलेट्स थी, ये मैंने निकाल दी, तो अब दिस इज ग्रेटर देन। मेरे पास कितनी है, अब इतनी ही चॉकलेट्स है, ये वाली चॉकलेट मैंने निकाल दी, तो क्या होगा, रिमूव किया मतलब ग्रेटर देन। समझ में आया आप बेटा? ये स्टेप मैंने निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, गायब कर दिया, किसी को दे दिया, तो मतलब ऊपर वाला स्टेप इज बिगर। समझ में आया बेटा? और अगर x = 0 है, जैसे यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, तो अगर सपोज x = 0 है तो ये दोनों टर्म इक्वल होगी, दैट्स व्हाई आई राइट हियर इक्वल टू। अब क्लियर हुआ? ओके ओके, सो दिस इज माय RHS। क्या सिचुएशन आई गाइस? What is the situation? LHS is greater than or equal to RHS. That's why P of k + 1 is true. Therefore, for all n belongs to n, Pn is true. Okay. So ये था आपका लेस देन ग्रेटर देन वाला पोर्शन। अभी भी एक एग्जाम्पल बाकी है, एग्जाम्पल नंबर 7। गाइस एग्जाम्पल नंबर 8 आपको होमवर्क में करना है आज। बहुत इजी है, ab⁴ पावर है, a⁴n b⁴n, सिर्फ आपको जो पावर लॉ है वही लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था, दैट्स इट, वही करना है, बहुत इजी है। ओके, तो ये आपको आज होमवर्क में करना है। एंड डू प्रैक्टिस दिस सम। अगर पूछे तो एक भी मार्क कट नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। वंदे मातरम।